Exam dost, success ka host. Sainik na voda ja met topmost. In how many years will a sum of money becomes double at 5% per annum simple interest? Question is asking in how many years, मतलब कितने सालों में sum of money remember is the principal. बिकम्स डबल मतलब हमारा प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाएगा एंड एट 5% पर एनम 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. और क्वेश्चन में ये पूछा है इन्होंने कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितने साल में डबल हो जाएगा एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. यहां पर हमें टाइम निकालना है. So first of all our first assumption will be आप क्या करिए आप प्रिंसिपल को 100 रुपीज ले लीजिए. This is my principal and according to the question it says that principal will be doubled. अच्छा principal is always converted to final amount. तो प्रिंसिपल डबल होने वाला है. अच्छा 100 का डबल क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा और हमारा प्रिंसिपल जो है वो डबल हो चुका है मतलब वो 200 में कन्वर्ट हो चुका है. तो प्रिंसिपल फाइनल अमाउंट में कन्वर्ट होता है बाय एडिशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया सिंपल इंटरेस्ट. सो आई कैन सी दैट माय प्रिंसिपल आई हैव टेकन एज 100. माय फाइनल अमाउंट is getting doubled means it will be 200 and principal gets converted to at what rate percent per annum sum of money become 4 times itself in 15 years. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने रेट परसेंट पर जो हमारा सम ऑफ मनी है जो कि प्रिंसिपल है वो 4 टाइम्स हो जाएगा in 15 years time. So according to the question the principal will become 4 times and 4 times means if I take principal as 100 for solving this question then the final amount will be 4 times means 100 का 4 times 400. और आपको पता है कि principal gets converted to final amount by addition of simple interest. principal कब final amount में convert होता है जब उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाता है. 100 अगर 400 में कन्वर्ट हुआ है इसका मतलब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है 300 रुपीज ऐड हुआ है. टाइम पीरियड हमें पता है 15 ईयर्स. हमें यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. लेट्स यूज द फॉर्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. एस आई विल बी 300 multiplied by 100 upon principal is 100 multiplied by time is 15. 100 कट कर दीजिए 300 को 15 से डिवाइड करेंगे our answer will be 20%. So rate of interest here is 20%. You can also find this question or you can solve this question using the trick method क्योंकि यहाँ पर रेट परसेंट पूछा हुआ है ऐसा ही हमको पता है प्रिंसिपल भी हमको पता है. वी कैन ऑल्सो गो बाय द शॉर्टकट मेथड विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड मल्टीपल टाइम्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. मिस्टर शर्मा टेक्स लोन ऑफ ₹25,000 and repays an amount of ₹31,000 at the end of 2 years. What is the rate of simple interest at which he repays the loan? There are 2 methods of solving this question. You can either go by the formula approach or you can directly solve the question. We'll first start with the formula approach. He takes a loan of ₹25,000. So the amount of borrowing will be the principal. The loan amount 25,000 will be our principal. The amount which he repays is the final amount.
which is 31,000 rupees. And from these two, we can find out the simple interest. Simple interest is final amount minus principal, which is 31,000 minus 25,000, which will be 6,000. So our simple interest here is rupees 6,000. Time period is 2 years. Let us substitute the value in the formula and find out the rate of interest. Rate of interest R is given by SI into 100 upon principal into time. SI here is 6,000 multiplied by 100 upon principal is 25,000 multiplied by time is 2 years. Let's simplify by cancelling the 0. In the numerator, I'll cancel 3 zeros of 6,000 with 3 zeros of 25,000. In the numerator, 100 I'll cancel by 25. It's 25 ones are, it's 25 fours are. Let's cancel the 2 and 4. It's 2 ones are 2, 2 twos are 4. In the numerator, I have 6 into 2. Denominator 1 into 1. Ignore that. Answer is 12%. So rate of interest here is 12%. Answer will be option number 3. Now friends, we have seen this question, how to solve this using the formula. Now let us understand this question, in which we will solve this without using any formula. First of all, the question says that Mr. Sharma takes a loan of rupees 25,000 and repays an amount of 31,000. Means उन्होंने लोन लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा लोन हमारा, बोरोइंग अमाउंट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, दैट इज 25,000. फाइनल अमाउंट इज 31,000. और अगर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल 25,000 और फाइनल अमाउंट 31,000 है, तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो ऐड होगी वो सिंपल इंटरेस्ट होगी. So we can find out the simple interest, which is 6,000 rupees. और ये जो 6,000 rupees का simple interest आया है, ये 2 years के लिए आया है. So 2 year simple interest is rupees 6,000. तो सबसे पहले आप ये करिए कि if 2 year simple interest is 6,000, then आप you find out the 1 year simple interest. आधा हो जाएगा, it will be 3,000. And this rupees 3,000 simple interest we are getting on the principal. So you simply have to find out that this SI of 3,000 is what percent of principal. आपका आंसर आ जाएगा. So SI 3,000 is what percent of principal 25,000. न्यूमरेटर में आप 3,000, डिनोमिनेटर में 25,000 ले लीजिए, परसेंट में आंसर निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए. 25,000 के 3 zeros, 3,000 के 3 zeros हम कट कर देंगे. 125 I'll divide, this is 1, this is 4. न्यूमरेटर में 3 into 4, my answer is 12%. तो सिंपल हमने 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाला और हमने ये देखा कि जो 1 ईयर का इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 पर मिल रहा है, तो वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, दैट विल गिव मी माय आंसर एज 12%. अगेन आई विल गेट द सेम आंसर ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर 3. Says what sum will amount to rupees 6,600 in 4 years at 8% per annum simple interest. क्वेश्चन का मतलब है व्हाट सम, मतलब कितना प्रिंसिपल होगा विच विल अमाउंट टू 6,600. रिमेंबर, principal is the amount, principal is the sum of money which amounts to final amount. तो अगर इन्होंने बोला है what sum will amount to rupees 6,600, मतलब हमें ये बताना है कि कितना प्रिंसिपल है जो कि फाइनल अमाउंट में कन्वर्ट होगा 6,600 में. So we have to find out basically the principal. टाइम पीरियड इन्होंने 4 years दिया हुआ है. Rate of interest 8%. Now in this question we have to find out the principal, but एक प्रॉब्लम ये है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ.
तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. फॉर सच क्वेश्चंस वी विल यूज अ सेपरेट फॉर्मूला विच इज फाइनल अमाउंट equals principal multiplied by 100 plus time into rate upon 100. Let us substitute the value. Final amount is 6,600. Principal we have to find out, multiplied by 100 plus time is 4 years, multiplied by rate is 8% upon 100. Now we solve this bracket part first. Bracket part में आप पहले 4 into 8 कर लीजिए. 4 into 8 ये हो जाता है 32 and 100 plus 32 हो जाएगा 132. So it will become 6,600 equals to principal multiplied by 132 upon 100. Now what we will be doing is left hand side का value 6,600 will be cancelled out by right hand side numerator 132. और अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से तो इसे हम कैंसिल कर ही सकते हैं, पर हम इन दोनों को 66 से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं. दैट इज 66 1 जा 66, तो ये वैल्यू 100 हो गई एंड 66 2 टाइम्स होता है 132. Now 2 and 100 I will divide. 2 1s are 2 and 2 50s are 100. You take 50 from right side to left side, it will go and it will be multiplied to the 100. So my principal will be 100 into 50, which is 5,000 rupees. So our principal amount here will be 5,000 rupees. Answer is option number 2. Now friends, we have seen this question using the formula, but let us solve this question without any formula. Let us solve it without the formula approach, using the conceptual approach. कॉन्सेप्ट समझकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में बताया है व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6,600. मतलब व्हाट सम मीन्स हमारा प्रिंसिपल जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ₹6,600. और टाइम कितना दिया है, कितने साल में ऐसा होने वाला है, ऐसा 4 साल में होने वाला है. तो 4 साल में हमारा प्रिंसिपल जो है वो 6,600 में कन्वर्ट हो जाएगा. फाइनल अमाउंट 6,600 हो जाएगी 4 इयर्स में. और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया है 8%. तो बच्चों सबसे पहले बात आपको समझने की जरूरत यह है कि प्रिंसिपल जो है वो फाइनल अमाउंट में कैसे कन्वर्ट होता है. प्रिंसिपल फाइनल अमाउंट में ऐसे कन्वर्ट होता है कि उसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड होती जाती है. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कुछ अलग से कोई अमाउंट नहीं आती, वो प्रिंसिपल का ही एक पार्ट होता है. हम प्रिंसिपल को ही बाय द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट से इंक्रीज करते जाते हैं. ये जो कि यहाँ पर 8% दिया है, मतलब हमें प्रिंसिपल को 8% से इंक्रीज करते जाना है. 4 साल है तो 4 बार आप उसे 8% से इंक्रीज कर दो. बार बार करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, 1 साल में 8% हो रहा है तो 4 साल में हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड प्लस 8. तो 4 साल का 8% का इंक्रीज ये हो गया एक्चुअल इंक्रीज ऑफ 32%. सिंपल इंटरेस्ट में इस तरह आप इसको ऐड करिए तो 32% का इंक्रीज यहां पर हमने जब प्रिंसिपल को किया तो वो 6,600 हो गया. ये हमारा प्रिंसिपल है, इसे 32% से इंक्रीज करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 100 प्लस 32. रिमेंबर द परसेंटेज कंसेप्ट. 32% का इंक्रीज करेंगे 100 प्लस इंक्रीज वैल्यू अपॉन 100 से, और इसे 32% हमने इंक्रीज कर दिया. आई विल राइट डाउन हियर दिस इज द 32% इंक्रीज, और 32% इंक्रीज के बाद ये बन जाएगा 6,600. विल बी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 32 हो गया 132 अपॉन 100 equals 6,600. Again we have the same number, same equation. 6,600 और 132 दोनों को हम 66 से कट कर रहे हैं. ये हो जाएगा 66 1 जा, तो यहाँ 100 आ गया. ये हो गया 66 2 जा. 2 और 100 कट कर दीजिए, 50 आ गया. 50 को राइट से लेफ्ट ले जाइए, 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा. माई प्रिंसिपल विल बी 100 into 50 which is 5,000 without any formula approach. In fact
अ फंडामेंटल अप्रोच, क्योंकि प्रिंसिपल को तो भाई जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट दी हुई है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, उसी इंटरेस्ट से इंक्रीज करना है। 4 साल दिया है तो 4 बार इंक्रीज कर दो। नेट इंक्रीज यहाँ पर टोटल 32% का होगा। मतलब जब हमने प्रिंसिपल को 32% से इंक्रीज किया तो वो क्या बन गया, 6600 बन गया। हमने प्रिंसिपल को पी लेकर उसे 32% का इंक्रीज कर दिया, परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई किया 100 प्लस इंक्रीज वैल्यू अपॉन 100 से, तो वो 6600 हुआ। इक्वेट किया, आंसर हमारा प्रिंसिपल का 5000 आ गया। दोनों केस में हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन 5000 आ रहा है, पर ये वाला अप्रोच जो है वो थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें किसी फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़े कैलकुलेशन भी इसमें कम है। इवन दो कैलकुलेशन दोनों में लास्ट पार्ट सेम ही आ रहा है, पर यहाँ पर आपको कोई T into R वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फंडामेंटल अप्रोच इज द अप्रोच विच वी विल बी फॉलोइंग। Here the question says that in what time rupees 3500 will become 4130 when annual rate of interest is 6%. In what time means हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। किस चीज का टाइम निकालना है? वो टाइम निकालना है जिसमें हमारा 3500 रुपीज कन्वर्ट होगा 4130 रुपीज में। सो रिमेंबर द ओरिजिनल अमाउंट जो 3500 है ये प्रिंसिपल होगी, और ये कन्वर्ट जिस अमाउंट में हुआ है 4130 ये फाइनल अमाउंट होगा। प्रिंसिपल फाइनल अमाउंट में तब कन्वर्ट होता है जब उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है। तो यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिल जाएगा कि 3500 और 4130 को अगर आप माइनस कर दो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिल जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग दीज टू 4130 minus 3500 which will give me my simple interest. It will be 0 3 6. This is the amount of simple interest. 630 हमारा SI हो गया। क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने 6% दिया हुआ है। आई विल राइट डाउन हियर। लेट्स सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द टाइम. टाइम इज SI multiplied by 100 upon principal into rate. SI is 630 multiplied by 100 upon principal is 3500 multiplied by rate of interest is 6%. Simplification, I'll cancel 2 zeros of 100, 2 zeros of 3500. We'll cancel 6 and 630. This is 6 ones are. This is 105. So I have in the numerator 105 and in the denominator I have 35. 35 3s are 105 हो जाएगा. So answer is 3 years. That is a formula approach. हमारा time जो होगा 3 years आएगा. Let us now understand this question without the formula approach. We'll do in a short while. Now let us solve this question using the trick method. The question says in what time rupees 3500 will amount to 4130. तो हमारा जो 3500 जो इनिशियल अमाउंट है वो हमारा प्रिंसिपल है which is 3500 और हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो 4130 है। तो आपका पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप SI निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनल अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है। वो आया है 630। ना हमारे यहां पर जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 630 मिल रहा है, और हमें यही बताना है कि वो कितने साल में मिल रहा है, क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर हमें सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर मिलता है। तो हमें ये पता करना है कि ये 630 का इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिलेगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आप 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालिए। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 6%। किसका 6%? 6% ऑफ प्रिंसिपल। ये हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल इज 3500। 0 0 काट दीजिए। 35 इंटू 6 ये हो गया 210। मतलब हमारा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 210 है। अच्छा, 1 ईयर में अगर हमें 210 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें यहां पर टोटल कितना चाहिए? 630 चाहिए।
तो वो हमें कितने ईयर में मिलेगा? तो आप यहां पर देखो रिलेशन कि 210 एक्चुअली 21 है और 630 63 है, तो 21 को 63 बनाना मतलब इंटू 3 कर देना। तो अगर SI का अमाउंट 3 टाइम्स हो गया तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा? इंटू 3 हो जाएगा, हमारा टाइम 3 ईयर्स आ जाएगा। सिंपल अप्रोच है। पहले हमने टोटल SI निकाल लिया और ये जो टोटल SI है इसका पीरियड क्या है ये हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 1 ईयर का SI निकाला, वो हमारा 210 आया। हमने देखा कि एक साल में हमें 210 मिल रहा है, तो 630 हमें कितने साल में मिलेगा? हमने देखा कि 210 इज एक्चुअली 21, 630 63, वो 3 टाइम्स का रिलेशन है, तो टाइम में भी 3 टाइम्स का रिलेशन हो जाएगा। आंसर विल बी 3 ईयर। अगेन हमारा आंसर सेम आ रहा है, पर यहाँ पर कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं है, कोई फॉर्मूला भी इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल अप्रोच है, कॉन्सेप्ट को समझने वाला अप्रोच है। A person borrowed a sum of rupees 20,000 for 2 years on simple interest. He had to repay 24,800 including interest after 2 years. The rate of interest per annum was. तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक पर्सन ने बोरो किया है 20,000, तो जो अमाउंट बोरो किया जाता है वो प्रिंसिपल बन जाता है। सो 20,000 इज प्रिंसिपल for 2 years on simple interest means time period is 2 years. And he had to repay 24,800. repay amount होता है वो final amount होता है which is 24,800 including interest after 2 years. It is obvious actually क्योंकि final amount जो होता है उसमें interest included होता है। They are asking to find out the rate of interest per annum. हमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी पड़ेगी? आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है 20,000, ये हमने बोरो किया और हमने रीपे कितना किया? हमारा फाइनल अमाउंट हमने जो लौटाया है, रिटर्न किया है, वो कितना है? वो है 24,800। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को देखकर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है, क्योंकि प्रिंसिपल फाइनल अमाउंट में कैसे कन्वर्ट होता है? जब उसमें SI ऐड होता है। तो 20,000 में कितना ऐड करने से 24,800 हो जाएगा? सिंपल आप देखकर निकाल सकते हैं कि हमारा SI यहां पर 4,800 आया है। दिस इज अवर सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं ट्रिक मेथड यूज करने वाला हूं, विदाउट फॉर्मूला मेथड में यूज करने वाला हूं कि 4,800 का SI हमने दिया है 2 साल में। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट है तो याद रखिए, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो वो एनुअली की बात होती है, तो आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। 2 साल का 4,800, तो 1 साल का हो जाएगा 2,400, आधा हो जाएगा 2,400 ना। अब आपको ये बात देखनी है कि ये जो हमें 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिला है ये होता क्या है। नाउ रिमेंबर दैट सिंपल इंटरेस्ट इज एक्चुअली फॉर 1 ईयर की बात कर रहे हैं। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज वैल्यू वो प्रिंसिपल की निकालनी होती है, वो SI होता है। तो यहां पर हमें सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है वो 2,400 का मिला है, और हमें जो सिंपल इंटरेस्ट 2,400 मिला है ये किस पर मिला है? ये हमें प्रिंसिपल पर मिला है। तो हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आप अगर फॉर्मूला मॉडिफाई करना चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, P को आप राइट से लेफ्ट ले लीजिए, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी SI अपॉन प्रिंसिपल। और आंसर परसेंट में भी निकालना है तो आप इन 200 कर लीजिए। तो SI हमारा आ रहा है 2,400, ये हमें SI मिला है। SI किस पर मिलता है? SI हमें प्रिंसिपल पर मिलता है, तो अपॉन में आप प्रिंसिपल लिख लो 20,000 और इसको आप कर दीजिए आंसर परसेंट में लाने के लिए इनटू 100। तो न्यूमरेटर में हमें क्या लेना है? 1 ईयर का SI लेना है। डिनोमिनेटर में हमें क्या निकालना है? क्या लेना है? प्रिंसिपल लेना है। क्या हम ढूंढ रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सिंपल अप्रोच, 1 साल का SI निकाल लिया 2,400, हमारा प्रिंसिपल है 20। तो हमें ये पता करना है कि ये जो 2,400 है ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो उसके लिए 2,400 SI अमाउंट को ऊपर, प्रिंसिपल को डिनोमिनेटर में नीचे, इनटू 100 कर दीजिए, आंसर परसेंट में आएगा। सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, 0 0 काट दीजिए, यहां पर भी 0 0 काट दीजिए, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 12%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर इज 12%। कंसेप्ट को समझना जरूरी है।
आई विल रिपीट वंस अगेन. सबसे पहले हमने प्रिंसिपल और फाइनल अमाउंट को देखकर हमने एसआई निकाल लिया. 4800 एसआई आ गया. ये 2 साल का एसआई है, क्वेश्चन में दिया है 2 ईयर्स. तो अगर हमने 2 ईयर्स का एसआई पता है तो हमने सबसे पहले 1 ईयर का एसआई निकाला. 1 साल का हो जाएगा 2400. ये आप मेंटली कर सकते हैं, आधा कर दो. अब हमें ये पता है कि एसआई जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल होता है. और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो एसआई अपॉन प्रिंसिपल कर दीजिए. तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि 2400 रुपीज हमें मिले हैं. ये किस पर मिले हैं? ये हमें मिले हैं प्रिंसिपल पर. तो ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट होगा ये आप निकाल लो, उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा. तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 2400 अपॉन 20,000 इंटू 100 कर दिया. आंसर 12% आ गया. आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ गया. Now let us solve this question using the standard formula. Now let's solve the question using the standard formula approach. The question says a person borrowed a sum of 20,000. So our principal here will be 20,000. For 2 years, time period is 2 years. And he had to repay. Repay means the final amount. Repay amount is the final amount, which is 24,800. So they are asking the rate of interest R. Now simple interest is not given directly, but we can calculate the simple interest by subtracting final amount and principal, जो कि हमने पहले भी निकाला हुआ है. Simple interest will be 24,800 minus 20,000, which is 4,800. Let us substitute all these values in the formula. The formula of rate of interest R is SI into 100 upon principal into time. SI is 4,800 multiplied by 100 upon principal is 20,000 multiplied by time period is 2 years. Let us simplify. There are 2 zeros, 2 zeros. Here also 2 zeros, 2 zeros cancel. 2 into 2 is 4. And when we divide 48 in the numerator by 4, I get the answer as 12%, as the same answer which we have found out earlier. Answer will be option number 3. What will be the rate of simple interest at which rupees 17,500 will become rupees 19,250 in 2 years? Again the question is asking the rate of simple interest R. They say that at which rupees 17,500 will become 19,250. Understand this language. What is the meaning? कि हमारा जो 17,500 रुपीस था वो कन्वर्ट हो गया 19,250 में. तो ओरिजिनल जो हमारा अमाउंट था, हमारे पास पहले जो अमाउंट है वो 17,500 है. तो और ओरिजिनल अमाउंट जो हमारा जो इनिशियल अमाउंट है, जो स्टार्टिंग का अमाउंट है, जो शुरुआत का अमाउंट है, वो हमारा प्रिंसिपल होगा. और प्रिंसिपल कन्वर्ट हुआ है 17,000 इंटू 19,250 मीन्स ये हमारा फाइनल अमाउंट आया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. क्वेश्चन में ये नहीं बताएंगे कि प्रिंसिपल कौन सा है, फाइनल अमाउंट कौन सा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, इन दोनों अमाउंट में जो स्मॉलर अमाउंट होगी वो प्रिंसिपल होगी, बिकॉज प्रिंसिपल इज ऑलवेज स्मॉलर देन फाइनल अमाउंट, ऑलवेज. और प्रिंसिपल फाइनल अमाउंट में कन्वर्ट कैसे होता है, उसमें ऐड हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट. तो 17,500 में हमारा एक अमाउंट ऐड हुआ है और उसके बाद वो 19,000. तो इसे कैसे निकाल सकते हैं? यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस टू. यू सब्ट्रैक्ट 19,250 एंड 17,500. इन दोनों को हम माइनस करेंगे. आई विल गेट 1,750. इफ यू वांट आई कैन डू इट सेपरेटली, बट सिंपल है, आप इसको माइनस कर लीजिए दोनों को. हमारा एसआई का वैल्यू आ गया 1,750. So now this is our simple interest. Let us substitute all the values and find out the value of rate of interest. Rate of interest formula is SI multiplied by 100 upon principal multiplied by time. Now here rate of interest we have to find out. Simple interest हमने निकाला, it is 1,750. Principal we have 17,500.
Again we have the time period as 2 years. Let's substitute all the values and find out the answer. SI is 1750 multiplied by 100 upon principal is 17,500. सिंपल वैल्यू एक्चुअली, ये न्यूमरेटर में SI 1750 है और प्रिंसिपल 17,500 है, तो वो सिंपली आप उसे कैंसिल कर सकते हैं एंड टाइम पीरियड इज 2 years. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, कैंसिल द 0 ऑफ 100. हमने 100 के 2 0 काट दिए, 17,500 के 2 0 आप काट दो. न्यूमरेटर में 1750, डिनोमिनेटर में 175 है, ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 10 टाइम हो जाएगा. न्यूमरेटर में 10, डिनोमिनेटर में 2 है, डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 5%. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर इज 5% यूजिंग द फॉर्मूला मेथड. नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस आउट बाय यूजिंग द फंडामेंटल अप्रोच. सिंपल, यहां पर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1750 है और ये 1750 हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है. अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1750 है तो पहला तो आप 2 साल के बेसिस पर ही निकाल सकते हैं कि 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या लगा होगा. अच्छा, ये जो SI आया है 1750, ये किस पर आया है? ये प्रिंसिपल 17,500 पर आया है. तो क्या हम ये निकाल सकते हैं दैट दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ SI 1750 इज व्हाट परसेंट ऑफ 17,500. उसके लिए 17,500 को डिनोमिनेटर में ले लो. व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है निकालने के लिए 1750 न्यूमरेटर, 17,500 डिनोमिनेटर, इंटू 100 कर दीजिए. सेम नंबर से 0 0 कट कर दो, आंसर आ गया हमारा 10%. पर यहाँ पर ये याद रखना है कि 10% ये कितने साल का है? ये 2 साल का है. अगर 2 साल का 10% है तो 1 साल का हो जाएगा 5%. अगेन सेम आंसर, लॉजिकल अप्रोच है, बहुत ही कंसेप्चुअल अप्रोच है, सोचने वाला अप्रोच है. बट इस तरह से अगर आपने कंसेप्ट को सोचा तो आप एक्चुअली इसको सही तरीके से पढ़ रहे हो. फॉर्मूला अप्रोच इज अ अप्रोच जो कि हमें फॉर्मूला तो बता देता है लेकिन वो आ कहाँ से रहा है ये नहीं बता रहा है. आप देखिए कि दोनों केस में हमारा फाइनल आंसर सेम आ रहा है और ये जो फंडामेंटल अप्रोच है इसी अप्रोच से हमने फॉर्मूला को बनाया है. तो आपको समझना दोनों है. एग्जाम में अगर आप ये फंडामेंटल अप्रोच यूज़ करेंगे तो आपके लिए थोड़ा टाइम सेव होगा, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए. वीडियोस को बार बार देखिए, एटलीस्ट 20 टाइम्स 30 टाइम्स जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस केस में हमें SI न्यूमरेटर में और प्रिंसिपल डिनोमिनेटर में लेना है, तब क्या करना है, ईयर वाइज चेंज करना है, तब क्या करना है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट बोथ द मेथड्स, आप फॉर्मूला अप्रोच यूज़ करना चाहें तो वो भी बहुत सिंपल है. एनी वन विच यू कैन यूज़, जो आपको कंफर्टेबल है वो आप यूज़ करिए.